Okay, so what we have discussed? We have discussed that when we talk about the tetrahedral field, in case of tetrahedral field, the repulsion faced by the dxy is more than the repulsion faced by dx square minus y square. The ligand is nearer to dxy as compared to dx square minus y square. Hence, in a tetrahedral field, the rise in energy is for the three orbitals, dxy, dyz and dxz. They rise in energy. While the dx square minus y square and dz square, they fall in energy. Fine. Now, none of these orbitals faces a head-on repulsion as is the case with octahedron. Therefore, the increase in energy of dxy, dyz and xz is lower than the increase in energy of dx square minus y square and dz square in octahedral field. In the same manner, when we talk about dx square minus y square in the tetrahedral field, here the distance of the ligand from dx square minus y square is less than the distance of the ligand in the octahedral field from xy. Therefore, the fall in energy of dx square minus y square in the tetrahedral field is lower than the fall in energy of dxy, dyz and xz in the octahedral field. So if we compare the delta T with delta O, that is the splitting in the tetrahedral field with the splitting in the octahedral field, then we find that the splitting in the tetrahedral field as compared to octahedral field is reversed. In case of octahedral field, dx square minus y square have higher energy, whereas dxy, dyz and xz have lower energy. In the case of tetrahedral, it is exactly reversed. dxy, dyz, dxz have a higher energy, and dx square minus y square and dz square have a lower energy. So if we were to compare the energy of the same orbital in the two fields, we would find that the energy of dx square minus y square is negative in tetrahedral field as compared to octahedral field. So first of all, the splitting in the tetrahedral field is negative of the octahedral field. That's the first thing. Second, in the case of tetrahedral field, there are 4 ligands. In the case of octahedral field, there are 6 ligands. So, very obviously, the repulsion in the octahedral field will be higher as compared to the tetrahedral field. The splitting in the tetrahedral field is just 4 by 6 of the splitting in the octahedral field. This is because of the change in the number of ligands. Further, in the case of tetrahedral field, there is no head-on repulsion. In the case of octahedral field, there is a head-on repulsion. Because of that, the splitting in the tetrahedral field becomes further 2/3 of the octahedral field. The overall splitting in the tetrahedral field in comparison to the octahedral field would become delta T is equal to minus 4 by 9 delta O. Is it clear? Fine. तो यहां पर हमने देखा कि टेट्राहेड्रल फील्ड और ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग का आपस में कंपैरिजन क्या है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्प्लिटिंग. नाउ ये जो डेल्टा टी और डेल्टा ओ है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ठीक है. जो सबसे पहला फैक्टर है, दैट इज what is the metal ion, what is the oxidation state of the metal ion. ठीक है. The simple observed fact is, as we move down the group, the splitting increases, बढ़ती चली जाती है. ठीक है. तो यानी कि अगर आप डेल्टा ऑफ निकल की बात करें और डेल्टा ऑफ प्लैटिनम की बात करें, चाहे वो टेट्राहेड्रल फील्ड ले लो चाहे ऑक्टाहेड्रल फील्ड ले लो, डेल्टा ऑफ प्लैटिनम वुड बी मच हायर देन डेल्टा ऑफ निकल. इज दिस क्लियर?
ठीक है, तो लिखिए द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा और dq. सेम चीज है, 1 dq इज 1/10 ऑफ डेल्टा. तो अगर डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी तो dq की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है, राइट इट. द फर्स्ट फैक्टर, the position of the metal ion in the periodic table. The position of the metal ion in the periodic table. ठीक है, लिखिए पहली चीज. On moving down the group, the magnitude of delta increases. ठीक है, for example, the splitting in nickel would be much lower than platinum. That was the first thing. Second, oxidation state of the metal ion. Oxidation state of the metal ion. Okay. With increase in oxidation state, the splitting increases. ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पर Fe3 प्लस की स्प्लिटिंग Fe2 प्लस से ज्यादा होगी. बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती जाती है, लिगैंड उतना पास तक आता चला जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा ना. ठीक है, ओके. द थर्ड थिंग, नंबर ऑफ ligands. I think that is very obvious. टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ ligands डिफर कर गया, स्प्लिटिंग चेंज हो गई. Number of ligands. As the number of ligands attached to the metal ion increase, the magnitude of splitting would increase. Is that clear? Okay. अब तीसरा इसके अगला लिखिए पॉइंट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज द नेचर ऑफ लाइगैंड. द नेचर ऑफ लाइगैंड. Be very clear, here we are very much dependent on how easily the ligand donates the electron cloud. More easily the ligand donates the electron cloud, more repulsive it is going to become. ठीक है? Fine. In this we find that if the ligand is donating from the side of carbon, for example in case of carbonyl, in case of cyanide, cyanide और carbonyl में एक और खास बात यह है कि rather than just donating, they pull the electron cloud from the metal ion as well. In that sense, the carbonyl and cyanide move much closer to the metal ion than any other ligand can. तो इनका रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है. इनफैक्ट ये समझ लो कि वो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो एक तो उसकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं और दूसरे के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन डाल के और कम कर रहे हैं. तो एक तरह से लाइक जो कार्बोनाइल और साइनाइड है ना, वो इस स्प्लिटिंग को बहुत ज्यादा कर देते हैं. ठीक है. Then comes nitrogen. Nitrogen is also quite basic, so it donates the electron cloud quite easily. So nitrogen also
does a higher splitting but lower than carbon donors. Then we have the oxygen. Now oxygen is a more reluctant donor as compared to nitrogen. And then comes halogen. Halogen becomes even more reluctant donors as compared to oxygen. अब halogen में fluorine is the best donor. Then is chlorine, bromine, iodine. तो जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं, उनकी डोनेशन कैपेसिटी कम होती चली जाती है. क्लियर? ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम सीधा सीधा लुईस बेस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. कौन सा कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर सकता है. Now, according to the capacity of the ligand in donating the electron cloud or the magnitude of the splitting they cause, we arrange the ligand in an order. This arrangement of the ligands in the order of the magnitude of the splitting they produce for the same metal ion, same number of ligands, same structure is known as spectrochemical series. देखिए spectrochemical series. Spectrochemical series. The arrangement of ligands in the order of magnitude of splitting they cause is termed spectrochemical series. Now be very clear, this spectrochemical series is not a predicted value. This is experimentally determined. Spectrochemical series is not a predicted value, it is experimentally determined. So, there would be an experimental arrangement of the ligands. If you see NCERT, you are going to find 10-15 ligands. If you see the Narayana package, you are going to find 20-25 ligands. If you get another book, you can get 30, 50, 100 ligands. So it is your choice. If you wish to learn all of them, go ahead, I am not going to stop you. But don't come and ask me, sir, what is the arrangement of these ligands, because I don't remember it. You know, I prefer telling the students what I don't remember, because this tells the student what is not required. I have been solving the papers for past 20 years. If I don't remember a thing, it means it's not required. Clear? But if you wish it, you may learn it. I have not objecting to it. For me, a simple order works. That's what I have told you. The carbon donors are better than nitrogen donors, which are better than oxygen donors, which are better than halogen donors. CNOx. So if you can remember CNOx, I haven't found a question that can't be solved by this. So CNOx itself is able to solve it. So carbon donors cause the maximum splitting, halogen donors cause the minimum splitting. Clear? ठीक है? कोई कंफ्यूजन? यहां पर जब हम लाइगेंड की बात करते हैं तो यहां पे एक टर्म यूज हो जाती है, लाइगेंड फील्ड. जैसे कि मैंने बताया था ना, फील्ड ऑफ द लाइगेंड. तो हम ये कह सकते हैं कि द लाइगेंड विच कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग हैव अ स्ट्रॉन्गर फील्ड, whereas the ligand which cause a lower splitting, they have a weaker field. Okay? Be very clear, strong and weak all are in comparison. So if you say, is cyanide a strong field ligand, or is cyanide have a stronger field, then the answer would be, which ligand are we comparing? If we are comparing it with carbonyl, no, cyanide has a weaker field as compared to carbonyl. But if we are comparing it with ammonia, yes, cyanide has a stronger field in comparison to ammonia. Clear? So the stronger field and weaker field is in comparison to each other. Any confusions? So we have just understood what are the factors on which
the splitting of this d orbital will depend. It will depend on the position of the metal ion in the periodic table. It will depend on the oxidation state of the metal ion. It will depend on the number of the ligand, and it will depend on the kind of the ligands. Is it clear? So these are the factors on which the splitting of this d orbital will depend. कोई confusion? ठीक है. अब ये जो orbitals यहाँ पर बने हुए हैं, these are the orbitals of the metal ion. ये metal ion के orbitals हैं. ठीक है? Is it clear? तो जब हम इन metal ion के orbitals की बात कर रहे हैं, हाँ? हमने किया नहीं, हमें पता है. मैंने क्या बोला? Spectrochemical series is not a predicted value. Spectrochemical series is experimentally determined. ठीक है. अब जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है, एक्सप्लेनेशन इजी है. पहले ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन बताता है कार्बोनाइल बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लाइगेंड. इट स्प्लिट्स द मैक्सिमम. ठीक है. साइनाइड भी स्प्लिट करता है पर कार्बोनाइल से कम. साइनाइड और कार्बोनाइल की जो स्ट्रेंथ है वो इनकी डोनर कैपेसिटी से नहीं है, इनकी एक्सेप्टर कैपेसिटी से. ठीक है. Carbonyl is a better acceptor than cyanide. So being a better acceptor, उसका bond छोटा बनता है, it moves nearer and therefore it splits more. Cyanide उतना नहीं करता. ठीक है. एक सिंपल सी बात है, cyanide में C triple bond N है. N would pull the electron cloud towards itself less strongly as compared to oxygen. Oxygen ज़्यादा strongly खींचता है. ठीक है. ओके. तो ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन के बाद आता है. इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ठीक है. ओके. तो ये हमने बात की स्प्लिटिंग की. अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, these orbitals are meant to accommodate the electrons of the metal ion. बता तो दिया अभी. कार्बन डोनर्स जैसे कार्बोनाइल साइनाइड है, वो स्प्लिटिंग ज्यादा कॉज करते हैं. अमोनिया से वो ज्यादा कॉज करेंगे, और अमोनिया वाटर से ज्यादा कॉज करेगा, वाटर क्लोराइड से ज्यादा कॉज करेगा. यानी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया कोबाल्ट, ठीक है, विद CN6 3-, ठीक है. मैंने ले लिया कोबाल्ट Cl6 3-, ठीक है. मैंने ले लिया कोई और. अब अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा तो दोनों में ही ये ऑक्टाहेड्रन्स है, दोनों में ही डेल्टा O है, लेकिन इसके डेल्टा O की वैल्यू इसके डेल्टा O की वैल्यू से कहीं ज्यादा है. ठीक है. अब एक जो छोटा सा क्वेश्चन होगा आपका वो ये कि मुझे कैसे, हाउ डू वी मेजर, ये मेजर्ड वैल्यूज है. ठीक है. ओके. अब मैं बताता हूं आपको कैसे मेजर करते हैं. ध्यान से सुन लेना, बहुत सिंपल सी चीज है. और जब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे मेजर करते हैं, इनफैक्ट आपको लगेगा अच्छा ओहो ये तो हमने देखा है. इट वुड बी लाइक दैट. कैसे? सुनो, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, these orbitals are supposed to accommodate the electrons of the metal ion. ये मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं. ठीक है. तो यहां पर लेट अस से मेटल का D1 कॉन्फ़िगरेशन है, आर्बिट्ररी कोई भी ले लेते हैं. D1 कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. दैट इलेक्ट्रॉन गोज इन दिस ऑर्बिटल. ठीक है. अगर ऑक्टाहेड्रन बनेगा तो यहां जाएगा, टेट्राहेड्रन बनेगा तो यहां जाएगा. ठीक है. हाँ, मेटल आयन के पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है. हाँ, तो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन डाले तो हैं इसमें. तो ये मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन है, लाइगेंड की बात नहीं कर रहा मैं अभी. इज इट क्लियर? ठीक है. अब सुनो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं, तो this electron has a capacity to move from a lower energy orbital to the higher energy orbital.
और इस केस में जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है वो दूसरा डी ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल, बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग कॉज्ड बाय द लिगैंड। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज द स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर? अब इस लाइगैंड को, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी मिलेगी कैसे? दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हीट कर दो या इसके ऊपर लाइट डाल दो। ठीक है, हीट करने में दिक्कत यह है कि हीट करोगे कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, और हीट के अंदर इन जनरल हमें एटॉमिक स्पीशी का स्पेक्ट्रा दिखता है, मॉलिक्यूलर स्पीशी का नहीं। हीट में वो टूट जाती हैं। तो इजी वे आउट इज अलाउ द व्हाइट लाइट टू फॉल ऑन इट। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एब्सॉर्ब सर्टेन फ्रीक्वेंसी representing the energy difference between the orbitals, and the rest of the energy would be reflected back. जो एब्जॉर्ब किया वो स्कैटर हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक होगी, वो दिखेगी। तो हमें एक व्हाइट लाइट डालने पर इस कॉम्प्लेक्स का एक कलर नजर आएगा। जो भी हमें कलर नजर आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसने एब्जॉर्ब किया। समझ आ गई बात? जो भी कलर हमें नजर आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम इसने एब्जॉर्ब किया है। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी हमें पता है। पता चल गया स्प्लिटिंग? ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस ट्रांजिशन की वजह से इस कॉम्प्लेक्स का एक स्पेसिफिक कलर आ जाएगा। ओके, ठीक है, और जैसे जैसे ये स्प्लिटिंग चेंज होती चली जाएगी कलर बदलता चला जाएगा। तो सेम मेटल आयन लेकर अगर हम लाइगेंड चेंज कर दें तो कलर चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लाइगेंड चेंजेस द स्प्लिटिंग, so color would change with the ligand. सेकेंड, अगर मैं मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दूं तो कलर चेंज हो जाएगा। Fe2+ will have a different color from Fe3+. ठीक है, this compound will have a different color from this compound. Okay, a tetrahedral complex of the same metal ion with the same ligand will have a different color than the octahedral complex of the same metal ion, same complex, same color, same ये ligand. ठीक है, और एक छोटी सी मजेदार बात बोलूं, अगर मान लीजिए मेरे पास CO NH3 4 Cl2 है, ये आयन है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, अगर मैं सिस की बात करता हूं तो क्लोरीन आर रिपेलिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर। They might be repelling the two lobes of dx square minus y square, or one lobe of dz square and one of dx square minus y square. On the other hand, if I talk about the trans, it is going to be 180 to each other, and they will be repelling the lobes of the same orbital. Won't the repulsion be different? Won't the splitting become different? Won't the color become different? समझ आई बात? Now, do you understand when I said that all the complexes of cobalt are colored and they have different colors? रीजन समझ में आया? अरे यार, दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के कलर सेम होते हैं क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में स्प्लिटिंग एग्जैक्टली सेम है, डायरेक्शन सेम है ना, एंगल सेम है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के कलर सेम है, तो उनको कलर से डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, उनको ऑप्टिकल एक्टिविटी से डिस्टिंग्विश किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, बाकी किसी भी तरीके का आइसोमर हो, चाहे उसमें लाइगेंड्स में चेंज है, चाहे वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आइसोमर है, चाहे आयोनाइजेशन स्पेयर आइसोमर है, चाहे वो लाइगेंड आइसोमर है, चाहे वो लिंकेज आइसोमर है, सबके कलर डिफरेंट हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनके कलर डिफरेंट हो गए। समझ आई बात? और जहां लाइगेंड डिफरेंट हुआ वहां तो कलर डिफरेंट है ही।
समझ आएगा? Here the color is due to the transition of an electron from a lower energy d orbital of a shell to the higher energy d orbital of the same shell. ठीक है? This is called dd transition spectra. याद है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बात की थी dd ट्रांजिशन की. ये है dd ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा. वेरी ऑब्वियसली D0 में ये नहीं होगा, वेरी ऑब्वियसली D10 में नहीं होगा. ठीक है? दिस इज ओनली पॉसिबल इन पार्शियली फिल्ड D सबशेल. इज इट क्लियर? समझ आया? तो डेफिनेशन लिख लो dd ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा की. किसकी क्या फ्रीक्वेंसी मतलब? कोई लाइट जनरेट कर रहा है शो पर, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी रेटिंग भी ज़्यादा होगी. फिर से बोल, क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी हमने वो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इस लाइट. कौन सी लाइट डाली है? वाइट. मोनोग्रामेटिक का मतलब ही नहीं है. मोनोग्रामेटिक की तो बात ये हो गई कि तुमने पहले से ही कैलकुलेट करके वही लाइट डाली है जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि अगर तुमने कोई और लाइट डाल दी तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. समझ आई बात? बेटा केमिस्ट्री की मजेदार बात यह है कि तुम क्वेश्चन भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पूछोगे उस क्वेश्चन में ही आंसर दे रहे होगे. लाइट इज डिस्क्रिमिनेटरी. तो जब लाइट डाली जाती है ना, तो एक सब्सटेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है. अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. समझ आइए बात? क्लियर? तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे स्प्लिटिंग डिपेंड करे. स्प्लिटिंग है, वो लाइगेंड वगैरह उन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. लाइट इज अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग. इट इज नॉट टू चेंज द स्प्लिटिंग. उससे कुछ नहीं होगा, लाइट से कुछ नहीं होता स्प्लिटिंग को. क्लियर? तो लिख लें dd ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा की. द कलर or the spectra, the color or the spectra, due to the transition of the electron, due to the transition of the electron from the lower energy d orbital, from the lower energy d orbital to the higher energy d orbital of the same subshell. From the lower energy d orbital to the higher energy d orbital of the same subshell is termed as d transition spectra. Full stop. It is possible only in metal ions. It is possible only in metal ions which have partially filled D subshell. Full stop. This is the reason. This is the reason of color of most of the transition metal compounds. Is that clear? ठीक है? तो जितना अभी तक हमने किया है, anything to ask him? देखो, ये जो भी चीजें मैंने आपको अभी अब समझाई हैं, these are the most difficult part of this chapter. I don't know whether you find it easy or difficult, but this is the most difficult part of this chapter.
ध्यान से देखते हैं। क्या हुआ? बोलो। बेटा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि ये चीजें आप बुक में नहीं कर पाओगे। हाँ, उस लिगेंड की फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। जब हम लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जब हम फील्ड की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्लिटिंग। चार इलेक्ट्रॉन पेयर और 4 लिगेंड्स हैं, उसमें 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 4 से बड़ा होता है ना। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ सिंपल एग्जांपल्स की बात करते हैं। लेट्स टेक 2 स्पेसिफिक एग्जांपल्स। एक लेते हैं CO Cl6 3 नेगेटिव, ठीक है। और एक लेते हैं CO Cn6 3 नेगेटिव, ठीक है। दोनों केस में कोबाल्ट है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोनों केस में एनायनिक लाइगेंड्स हैं। दोनों केस में 6 लाइगेंड्स हैं। दोनों केस में ऑक्टाहेड्रन है। फर्क यह है कि क्लोराइड इज अ वीकर फील्ड लाइगेंड एज कंपेयर टू साइनाइड, ठीक है। एंड इन फैक्ट वी हैव टेकन द वीकेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ज्यादा रेंज हमने ले ली है जानबूझ के लिए उसको, ठीक है, जिससे कि जो मैं करने वाला हूं उसमें कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, दोनों केस में कोबाल्ट इज 6+ और दोनों केस में कोबाल्ट हैज 6d इलेक्ट्रॉन, इट इज d6, 3+ है, दोनों में d6 है। तो कोबाल्ट के अंदर हमारे पास ये 3d ऑर्बिटल है, ठीक है। देन वी हैव the 4s orbital, and then we have the 4p orbital, ठीक है। we have 3d 4s 4p, ठीक है। similarly क्लियर, ओके। अब देखो, हमें इसके अंदर अच्छा 4d भी बना देते हैं। दिस इज 4d। अब देखो, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल फील्ड, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल करना शुरू करते हैं तो हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, वो यहां आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, वो यहां आ जाएगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। D3 करेंगे, इसमें यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टेट्राहेड्रल में D3 की बात आएगी तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा। वो कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या यहां आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा या
अनपेयर्ड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फैक्टर पे डिपेंड करता है। बी वेरी क्लियर, इस पर्टिकुलर फैक्टर पर वो हुल्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बेस्ड है। ये फैक्टर उस पर नहीं है, इस फैक्टर पर हुल्स रूल है। होता यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को पेयर किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो उनको पेयर करने के लिए एक एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एंड दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहां डाला जाए तो आपको एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी डालनी पड़ेगी, विच यू मे कॉल इट एज पी। कोई भी सिंबल दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे आपको एक पी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहां ना डाल के यहां डालते हो तो आपको डेल्टा टी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में डेल्टा टी वैल्यू ज्यादा है। अब क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा है कि इज डेल्टा ग्रेटर और पी ग्रेटर। अगर पी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा पेयरिंग में, और अगर डेल्टा टी ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इट इज प्योर कंपैरिजन ऑफ एनर्जी। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वहां पे एस और पी में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि पेयरिंग करनी है या इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब तक लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सारे फिल नहीं हो जाते तब तक अगला ऑर्बिटल फिल नहीं होता। लेकिन यहां पर ये डी और डी ऑर्बिटल की ही स्प्लिटिंग है, सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं, सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके बीच की स्प्लिटिंग कंपेरेबल हो जाती है। ठीक है, अब ये यहां से यहां जाएगा या यहां फिल होगा, ये डिपेंड कर जाता है नंबर ऑफ लाइगेंड्स पे, डायरेक्शन ऑफ लाइगेंड्स पे, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे, मेटल आयन की पीरियोडिक टेबल पे पोजीशन पर, एंड काइंड ऑफ लाइगेंड्स पे। ठीक है, क्लियर? इन पर डिपेंड हो जाएगा। अब देखो, कहने को तो एकदम से बड़ा सा कंफ्यूजन हो, अबे इतनी सारी चीजें कैसे देखेंगे, तो चलो इन सारी चीजों को छोटा कर देते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो बहुत कम है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई भी लाइगेंड हो, कोई भी, सोचना ही नहीं है कौन सा लाइगेंड। साइनाइड है कोई बात नहीं, कार्बोनाइल है कोई बात नहीं, क्लोराइड है कोई बात नहीं। टेट्राहेड्रल फील्ड में डेल्टा टी इज ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस दैन पी। ठीक है, डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पी। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में इट विल फिल अप एज इफ स्प्लिटिंग हुई नहीं है। ठीक है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को तो काम कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4th इलेक्ट्रॉन डालते हैं। टेट्राहेड्रल में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, यहां आएगा, पर अब ऑक्टाहेड्रल की कंफ्यूजन हो गया। ऑक्टाहेड्रन के अंदर ये स्प्लिटिंग अच्छी खासी है, ये पी से ज्यादा भी हो सकती है और पी से कम भी हो सकती है। अब ये सारा का सारा डिपेंड हो गया मेटल आयन कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, लाइगेंड कौन सा है, कितने हैं। ठीक है, क्लियर? अगर लाइगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर दे तो डेल्टा और पी से ज्यादा हो जाएगा, हो जाता है। अगर लाइगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा कर दे तो डेल्टा ओ की वैल्यू पी से ज्यादा हो जाएगी, फिर यहां पे पेयरिंग शुरू हो जाएगी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा ना करे तो एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कौन सा लाइगेंड पेयरिंग करेगा और कौन सा नहीं करेगा ये भी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हम कुछ कुछ केस में बोल सकते हैं, जैसे कि साइनाइड कर ही देता है, जहां पेयरिंग हो सकती है साइनाइड कर देता है। ठीक है, अमोनिया कर देता है। ठीक है, वाटर जनरली कर देता है, बट आयरन में नहीं कर पाता।
जनरली कर देता है, और क्लोरीन जनरली नहीं करता। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो नहीं करता, लेकिन हां अगर मैं प्लैटिनम पैलेडियम की बात करूं वहां पे क्लोरीन कर देता है। प्लैटिनम पैलेडियम की तो खासियत यह है कि कोई भी लाइगेंड हो, स्प्लिटिंग हमेशा पी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे कोबाल्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मेरे पास 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी। एक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो ये 6 में ऐसे आएगा, यानी कि 6 के 6 यहां भर जाएंगे। ठीक है, और अगर ये स्प्लिटिंग कम है, एंड माइंड इट, ये डिस्टेंस चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज इन लाइगेंड, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात करूंगा, क्लोराइड वीक फील्ड, ठीक है, इसकी फील्ड कम है, स्प्लिट ये फिलिंग 1 2 3 4 5। अब देखो एज सच हमारे पास dx² - y² dz² dxy dz dxz है, तो पेयरिंग dxy dz dxz इन तीनों में से किसी में भी हो सकती है। x² - y² dz² में नहीं होगी। क्लियर? अब मुझे नहीं पता आपने नंबरिंग कैसे कर रखी है, आपने कौन सा dx² - y² मान रखा, कौन सा xy कौन सा yz मान रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जो पहले होता है उसी को दोबारा भर देते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि पहले वाला dxy yz dxz है 3, कंसीडर। ठीक है, ध्यान रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहां पर आई एम जस्ट मेकिंग अ पेयर हियर, कंसीडरिंग ये 3 dxy dyz dxz है और ये dx² - y² dz²। कंसीडरिंग आप चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, और यहां पर जब फिल करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6। दिस इज dxy dyz dxz। मैं एक एक करके भी लिख सकता था, लेकिन बात यह है कि इसका ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, while this one is dx² - y² dz²। तो dx² - y² और dz² खाली है, whereas dxy dyz dxz have electron pair each। ठीक है, it is not violating the Hund's rule. Simple reason, Hund's rule says the orbitals having the same energy। यहां पे orbitals की एनर्जी सेम नहीं है। ऐसा लग रहा है या तो कुछ समझ में आ गया या कुछ कंफ्यूजन है। क्या चीज है? अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर? तो a ligand which causes the pairing of the electrons, if possible, is termed a strong field ligand, and the ligand which is not able to cause the pairing of electron where it is possible is termed as a weak field ligand। ठीक है, बी वेरी क्लियर, D1 D2 D3 स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि D3 और D1 D2 में पेयरिंग हो ही नहीं सकती। 3 तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था लाइगेंड कौन सा है। ठीक है, क्लियर? D9 D10 की बात करोगे फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लगा दो। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंस जो है ना, वो D4 से D7 D8 तक ही है, उसके आगे नहीं है। ठीक है, D1 D2 D3 में कोई डिफरेंस नहीं है, D9 D10 में कोई डिफरेंस नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब
ये हमने बना दिया। अब देखो, जब लाइगेंड मेटल आयन को अप्रोच करता है तो उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मेटल आयन के ऑर्बिटल में डाले। तो लाइगेंड वुड ऐड द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। पेयर आ रहा है तो इसलिए उसको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। जब हम 3D और 4D की बात करते हैं तो 3D और 4D में एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंस कोई डिफरेंस नहीं है। 3D और 4D में एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेटल आयन कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आई बात? डिस्टेंस का मतलब है एनर्जी। तो लाइगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा है, अगर वो यहां रुक गया तो आई विल से इट इज 4D, और वो यहां आ गया तो आई विल से 3D। ये डिफरेंस है, ठीक है। Ligand will have a tendency to move nearest to the metal ion, और उसी चक्कर में वो यहां पे खाली जगह बना रहा है। कोई बना पाता है तो ऐसा हो जाता है, जो नहीं बना पाता वो ऐसा हो जाता है। तो अब अगर जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा तो यहां पर पीछे के तो सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो इट विल हैव टू स्टॉप अ लिटिल फार्दर अवे, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई थिंक हम सबको गिनती आती है, हम सबको पढ़ना भी आता है, तो हम ये गिन सकते हैं 1s p के 3 d के 2, ठीक है। तो 1s p के 3 d के 2, the hybridization is sp3d2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना? इसकी बात करें, अब यहां पर ये जगह खाली है तो ऑब्वियसली लाइगेंड पास तक पहुंचेगा। जब पास तक पहुंचेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा, ये दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहां पर D के 2, S का 1, P के 3, इट इज D2sp3। नहीं कर पाता बेटा, वीक फील्ड है, इतना अच्छा डोनर नहीं है, इतना ज्यादा पास नहीं पहुंच पाता, ठीक है। क्लियर? अब देखो इनमें दोनों में क्या फर्क है। देयर इज अ वेरी नाइस डिफरेंस बिटवीन द टू। The first one is the electrons are getting unpaired. तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करूं तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आएगा। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। I can consider it to be a high spin complex. ठीक है? Whereas the second one is going to be diamagnetic. I can consider it a low spin complex. ठीक है। हाई स्पिन और लो स्पिन टर्म फिर तब यूज होती है जहां पे दो पॉसिबिलिटी हो। D1, D2, D3 में यूज नहीं होंगी, D9, D10 में यूज नहीं होंगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अ लाइगेंड which pairs up the electron forming a low spin complex and giving a inner sphere hybridization, 3D यूज हुआ है 4D की जगह, is termed a strong field ligand। ठीक है। और whether a ligand is a strong field or a weak field depends on complex। एक ही ligand किसी complex में strong field और दूसरे complex में weak field हो सकता है।
इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? मेटल लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, कितने लाइगेंड उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर एक ही फैक्टर पकड़ के बैठ जाओगी क्या? हमारी यही गलती होती है, हम एक फैक्टर पकड़ के बैठ जाते हैं। फैक्टर 4 है, पकड़ लिया एक। और एक बी वेरी क्लियर, ये जो हमने यहां पे स्प्लिटिंग बना रखी है, यहां पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यहां पे सारे लाइगेंड आइडेंटिकल है। अगर यहां पे लाइगेंड डिफरेंट होगा तो ये स्प्लिटिंग ऐसी रहेगी नहीं। यहां पे पता चलेगा 5 डी ऑर्बिटल, पांचों की एनर्जी डिफरेंट हो गई। समझ आई बात? ठीक है। अब और रीजन क्लियर हो रहा है कि कलर और डिफरेंट क्यों आएंगे, क्योंकि जब आपने व्हाइट लाइट डाली तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई, तो एक फ्रीक्वेंसी की जगह 2 फ्रीक्वेंसी भी एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर 2 फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई तो अकॉर्डिंगली कलर भी चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर, वो मेरे पास एक पर्टिकुलर लाइगेंड है, ठीक है, मेरे पास एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, उसने येलो को भी एब्जॉर्ब कर लिया और लेट अस से ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लिया। अब येलो और ऑरेंज एब्जॉर्ब हो गए, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू बच गया, ठीक है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री वायलेट बच गया। तो जो मुझे कलर नजर आएगा वो ब्लू और वायलेट का कॉम्पोजिशन समझ में आएगा ना, तो एक शेड बन जाएगी ना ब्लू वायलेट के बीच में कहीं। हमें जो कलर्स नजर आते हैं वो प्राइमरी कलर्स नहीं है सारे, देखो मिक्सअप होते हैं सारे कलर्स। तो ये कैसे पता चल रहा है कि मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व कर लिया और दो स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लाइट बाहर निकल रही है उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास करते हो ना, तो जितनी भी लाइट निकल रही है वो पूरी स्प्लिट हो जाएगी ना, सारी फ्रीक्वेंसी दिख जाएंगी ना, कौन सी गायब है कौन सी है। समझ आई बात? जब मैंने आपको बोला था डिस्टिंक्शन करने की बात, तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मेनी अ टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू सी अ पर्टिकुलर थिंग एंड डिफाइन दैट दिस इज अ डिफरेंट कलर। वी नीड टू पास इट इन अ स्पेक्ट्रोस्कोप, कलरीमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करना पड़ जाता है। बट अगर वो भी करना पड़ गया तो अल्टीमेटली 2 ही मिनट की चीज है, डालो बटन दबा देख ले कौन सा कलर का मिसिंग है। क्लियर? ठीक है। और ध्यान रखना हर स्पेक्ट्रोस्कोप की एक रेंज होती है, जो उसका बल्ब है ना वो एक पर्टिकुलर रेंज का होता है कि भाई ये वाला बल्ब इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक देता है, तो अगर इस फ्रीक्वेंसी के बीच में वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा। कुछ है कि ये इससे हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप्स भी होते हैं, क्योंकि यहां पर हमें देखने की जरूरत नहीं होती, वहां पे फोटोकेमिक वो होता है, क्या कहते हैं, फोटोवोल्टेक सेल होता है, फोटोवोल्टेक वो होता है सेल, ठीक है। तो वहां पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी पड़ती है करंट मेजर करता है वो। यहां पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी डालो देखो कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये फ्रीक्वेंसी डालो देखो कितना एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। ये फिजिकल मेजरमेंट्स है। इन फिजिकल मेजरमेंट में कंपाउंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बार कर लो। जब किसी कंपाउंड को एनालाइज करना होता है ना तो उसका एक तरीका होता है, कंपाउंड लिया, थोड़ा सा कंपाउंड लिया, सॉल्यूशन बनाया, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस पूरा कर डाला, कंपाउंड को कुछ नहीं होता। फिर सॉल्वेंट को इवापोरेट किया, कंपाउंड वापस, फिर कंपाउंड को किसी दूसरे सॉल्वेंट में डाला, पोलारीमीटर में डाल के ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर कर ली, फिर कंपाउंड इवापोरेट किया वापस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें। फिर कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में कंपाउंड का कंजम्पशन होना ही होना है, उसका चेंज आना ही आना है, तो केमिकल एनालिसिस में कंपाउंड कंज्यूम होता है, फिजिकल एनालिसिस में नहीं होता। ये सिंपल से फिजिकल एनालिसिस है। इज इट क्लियर? और मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इनसे ही निकलता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की डेफिनेशन लिखवा दी थी, लिखो। A ligand which causes a large splitting so that
the electrons get paired up forming a low spin inner sphere complex. इनर स्फीयर का मतलब है कि 4D की जगह 3D ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में. इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स आर टर्म्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. Is that clear? Any confusions? Any problems? Okay. So that is what we term as strong field ligands. Okay? Very obviously, उल्टा भी वैलिड है. वीक फील्ड लाइगेंड्स जहां पे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बट बी वेरी क्लियर, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड. ये बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड सिर्फ तब वैलिड है जब दो केसेस पॉसिबल हो. D10 में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड नहीं होता. D0, D3, D1 में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड नहीं होता. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. ओके. अब एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोनाइल का, मेटल कार्बोनाइल का, निकल कार्बोनाइल का. ठीक है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोनाइल इज फॉर्म्ड इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. मतलब कि कार्बोनाइल उल्टा है. हम हमेशा कहते हैं कि मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा. कार्बोनाइल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होगा. क्योंकि कार्बोनाइल इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उतना आसान हो जाएगा. ठीक है. तो कार्बोनाइल आर फॉर्म्ड मोस्टली इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन सम केसेस इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. तो अब मैं निकल की अगर बात करूं तो कार्बोनाइल इज फॉर्म्ड इन निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. निकल जीरो इज D8S2. निकल जीरो इज D8S2. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं निकल कार्बोनाइल की. अब जब कार्बोनाइल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है तो वो एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, रिपेल करता है. एक बड़ी मजेदार बात है, d orbital are centered on the axis, p orbital are centered on the axis, s orbital is spherical everywhere. Ligand p orbital को अवॉइड कर सकता है. ठीक है. अगर स्पेस के सेंटर से आए तो d को भी अवॉइड कर सकता है, लेकिन s को कभी अवॉइड कर ही नहीं सकता. एक सिंपल सी बात है, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल लाइगेंड को आने ही नहीं देगा. s ऑर्बिटल में जैसे ही लाइगेंड आता है वो s को तो रिपेल करेगा ही करेगा, कहीं से भी हो जाए. तो निकल के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इज D8S2. लाइगेंड आता है, s को रिपेल करता है, s की एनर्जी को बढ़ा देता है, पता चलता है s से इलेक्ट्रॉन निकल के d में चला गया. तो कार्बोनाइल के प्रेजेंस में निकल का कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाता है. D10. ठीक है. अब कार्बोनाइल आता है. अब देखो, कार्बोनाइल ने मजे मजे में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी. कैसे? निकल के सारे d ऑर्बिटल को फिल कर दिया. और वो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया. d ऑर्बिटल को बड़ा गुस्सा आ रहा है, कहता लाइगेंड को यहां से तो नहीं आने दूंगा. D10 कॉन्फ़िगरेशन में लाइगेंड किसी भी एक्सिस से अप्रोच नहीं कर सकता सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स.
वो कहीं इन बिटवीन एक्सिस भी अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में लाइगेंड की मजबूरी है, इट हैज टू मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। मतलब ये वो टेट्राहेड्रन ही बना सकता और कुछ बना ही नहीं सकता। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रन नहीं बनेगा, D10 में टेट्राहेड्रन ही बनेगा क्योंकि एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस तो इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो कुल कितने लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे? 4। बनेगा क्या? ठीक है, अब यहां पे D तो फुल है, 3D बचा 4s, 4p, 4d। लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 4। Tetracarbonyl nickel 0 is sp3 hybridized, is tetrahedron, is diamagnetic. sp3 tetrahedron diamagnetic, तीनों चीजें अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। बेटा लाइगेंड के पेयर को मेटल आयन के पेयर से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उसको क्रॉस लगा देते हैं बस, बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर है। बुक्स के अंदर पॉसिबिलिटी होती है वो अलग कलर में छाप देते हैं, तो किसी किसी किताब में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर अलग कलर में दिख जाएगा, जहां पे सेम कलर है वहां पे क्रॉस दिख जाएगा, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, और कोई रीजन नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। NiCl, ठीक है, X ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, N माइनस या 0 जो भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन। अब निकल यहां पे 2+ है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल 2+ की है, वो D8 कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन के बस का नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना, तो यहां पर D8 कॉन्फ़िगरेशन, हर जगह इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन को मजा नहीं आता, कहता मैं चल ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन को मैं पेयर तो कर नहीं सकता, चलो फेस से आते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल बनाता है। ठीक है, टेट्राक्लोरिडोनिकलेट 2 आयन, टेट्राक्लोरिडोनिकलेट 2 आयन, 4 क्लोरीन है, comes from the tetrahedral direction, पेयरिंग नहीं करवा सकता, ये बनता है sp3 फिर से, लेकिन ये sp3 है, टेट्राहेड्रन है और पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे मजेदार एग्जांपल निकल का साइनाइड के साथ। ठीक है, अब निकल साइनाइड का अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, थोड़ा सा साइनाइड डालते हैं, जाता जाता उछल कूद करता हुआ, कहता है यार अगर मैं फेस से आता हूं तो रिपल्शन बहुत मिलता है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम अ साइड। ठीक है, मूव करता है, जिस ऑर्बिटल की तरफ मूव करता है उसको तसल्ली से रिपेल करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर? अब अगर वो किसी से अप्रोच कर रहा है, जिस डायरेक्शन से लाइगेंड अप्रोच कर रहा है, अगर वहां पे ऑर्बिटल है तो वो एक्सिस है, तो इट अप्रोचेस फ्रॉम द एक्सिस, तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देगा, इट विल बी dx² - y² और dz²। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं यार 4 लाइगेंड्स हैं, तो चारों एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे अप्रोच कर रहे हैं, तो लेट अस से dx² - y² की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, लेट अस से।
ठीक है, तो अगर डी एक्स को और एक और बात का ख्याल रखना कि अगर लाइगेंड 90 डिग्री विद ईच अदर अप्रोच कर रहे हैं, 4 लाइगेंड्स, तो वो प्लेनर बन जाएगा, और जब प्लेन बन जाएगा तो एक्सिस विल बी दिस, और जो भी मॉलिक्यूल की एक्सिस होती है उसको बाय डिफॉल्ट जेड लेते हैं। तो ये कन्वेंशन है। मैं 2 को z से और 2 को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से भी मान सकता था, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डी एक्स स्क्वायर की तरफ से मान लिया है, वो 6 लोब्स कोई भी हो सकती है। जब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरफ से रिपेल करेगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी को बढ़ा देगा। डी जेड स्क्वायर के अंदर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से निकल के इलेक्ट्रॉन पेयर डी जेड स्क्वायर में चला जाएगा। अभी जो डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन पेयर गया है वो उस डायरेक्शन से लाइगेंड को अप्रोच नहीं करने देगा। अब लाइगेंड सिर्फ एक्स और वाई की डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। Cyanide is a strong field ligand. It moves from the direction of the axis, increases the energy of that orbital. वो ऑर्बिटल खाली हो जाता है, ठीक है। एक ऑर्बिटल खाली करने का मतलब है 4 ऑर्बिटल फुली फिल्ड, D8 है, ठीक है। जो खाली हुआ उसको हमने Z मान लिया, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, खाली हुआ उसको हमने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लिया, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। हाँ, तो x और y भी तो एक्सिस है। dz स्क्वायर की एनर्जी क्यों बढ़ेगी? हमने x और y के डायरेक्शन से लाइगेंड को बुलाया, तो x और y के डायरेक्शन से जब आएगा तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन dz स्क्वायर में चला जाएगा, तो dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर dxy dyz dxz, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खाली हो गया, ठीक है। तो ये एनर्जी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है, और ये dz स्क्वायर है। तो यहां पर जब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाएगा ये बनेगा, और जो खाली है ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चार इलेक्ट्रॉन पेयर डालने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, एक डी है, एस का 1 है, पी के 2, DsP2। Is that clear? The tetracyanidonicolate 2 ion is square planar, diamagnetic, DsP2 hybridized, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगा और उनका जवाब दूंगा, एंड वी विल फिनिश द क्लास, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट द चैप्टर इज ओवर, 2-4 लाइनें और रह गई, ठीक है। पहली चीज, यहां पे sp3d2 है, डी के 5 ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dxz, ठीक है। ये 2 d ऑर्बिटल कौन से हैं? ये 2 d ऑर्बिटल कौन से हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dxz, पांचों की एनर्जी बराबर है, तो ये कौन से हैं दोनों? कोई भी, ठीक है। आर यू कैरिंग अ हैंकी? हाँ नहीं, वाई जेब, रुक जा, कौन सी जेब में है? ये राइट पॉकेट है ना, गेट इट आउट विद द लेफ्ट हैंड, इजी, नहीं, गुड। मैं हैंकी अपना अक्सर राइट पॉकेट में रखता हूं, ज्यादातर लोग रखते हैं, बट आइडियली उनको लेफ्ट पॉकेट में रखना चाहिए। आइडियली हैंकी की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका राइट हैंड बिजी होता है, खाना खा रहे हो,
तब जरूरत पड़ेगी, कुछ कर रहे हो तब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर छींक आ गई है मान लो, तो सबसे पहले राइट हैंड जाएगा ऑब्वियसली, अब राइट हैंड से तो निकाल नहीं सकते, तो अब आप ऐसे करके निकालोगे। तो आइडियली हैंकी शुड बी इन द लेफ्ट पॉकेट, और हम रखते राइट पॉकेट में, आदत है मेरी भी राइट पॉकेट में ही, मुझे पता है लेफ्ट में होना चाहिए, मैं कॉशियसली अगर रखूंगा तो मैं लेफ्ट में रखूंगा, अगर मैं ऐसे ही रखूंगा तो राइट में रखूंगा, ठीक है। अप्रोच लेफ्ट वाली इजी है, लेफ्ट हैंड की अप्रोच इजी है, ठीक है। राइट पॉकेट से लेफ्ट हैंड से निकालना फिर काम है, क्लियर। अब लाइगेंड जब अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली वो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डालेगा जो उस रास्ते में है। लाइगेंड कहां से आ रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में? एक्स, वाई और जेड एक्सिस से, तो ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल एक्सिस पर है उसी में तो डालेगा। सबकी एनर्जी बराबर है, नो डाउट, दोनों पॉकेट्स की एनर्जी बराबर है, लेकिन अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड यूज करना है तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट पॉकेट में डालोगे ना, राइट पॉकेट में तो नहीं। समझ आई ये बात? तो ये जो sp3d2 है ना, तो वो जो d ऑर्बिटल है, दे हैव टू बी dx² - y² एंड dz², नो ऑप्शंस, नो कंफ्यूजन्स, ठीक है। Am I clear? So which orbital is used for the bond formation does not depend on anything, but it depends on the approach of the ligand. अब जैसे मैंने स्क्वायर प्लेनर की बात की, स्क्वायर प्लेनर dsp2 यहां बना है, ये sp2d भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अंदर वाला d ऑर्बिटल, ये भी आउटर स्फीयर हो सकता है, लेकिन वहां पर भी dx² - y² ही होगा। स्क्वायर प्लेनर कभी भी sp3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर? द शेप, द स्ट्रक्चर डिसाइड्स द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट डिसाइड द स्ट्रक्चर। ये नहीं कि आप हाइब्रिडाइजेशन पहले सोच के फिर स्ट्रक्चर बना लो ना, पहले आपको स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर प्लेनर मींस sp2d। अच्छा एक बात बताओ, ये जो dsp2 है इसमें ये p दोनों कौन से हैं, और ये जो खाली वाला p है ये कौन सा है, ये बताओ बस। ठीक है, px, py, pz है, ये जो खाली p है इन तीनों में से कौन सा है? p has to be pz, क्योंकि z डायरेक्शन से लाइगेंड आ ही नहीं रहा। इज इट क्लियर? समझ आ गया? आपका चैप्टर प्रैक्टिकली ओवर हो चुका है, सिर्फ एक चीज करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। खत्म हो गया चैप्टर। आज इस चैप्टर के जाके क्वेश्चंस कर लेना, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, और देख लेना कहीं एक आधा बीच में टॉपिक मिस तो नहीं हो गया मुझसे। अगर हो गया करा, ठीक है। कल हम इसे खत्म कर देंगे और कल हम शुरू कर देंगे। कल भी है क्या? एक्स्ट्रा क्लास लूंगा कल, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, CL4 है, CL4 ही तो लिखा हुआ है। लास्ट में अच्छा CL4 लिख दो।